Good evening, everyone. Welcome, everyone. मैं डॉक्टर सिद्दीका हुसैन, a clinical psychologist and a psychotherapist working in उदयपुर। मैं आप सबका इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। And I really want to thank Rotary Mira Udaipur for giving me this opportunity to come live on mental health issues, a favorite subject of mine, rather I would say something I'm really passionate about it. Today is World Mental Health Day. In fact, this Mental Health Day was started on 10th of October 1992 to create awareness about the mental well-being, to improve the mental health facilities, and to fight against the stigma, the social stigma in regard to mental health issues. What do you mean by being healthy? A state of complete physical, mental, emotional, social well-being. A strong mind and body connection. A very stable and a strong mind and body connection. इसलिए संपूर्ण स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य के बिना सोचना भी गलत होगा। संपूर्ण स्वास्थ्य इन चारों पिलर्स के ऊपर मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक, इन सब का होना बहुत ज़रूरी है। Holistic well-being is maintained and balanced on all these four pillars. And it is extremely essential to keep all these pillars functioning. Needless to say that our poor physical health can lead to high risk of mental health problems. For example, patients suffering from terminal diseases like cancer, renal failure, cardiac problems, they often suffer from depression, anxiety, chronic stress. And on the other hand, people who are diagnosed with depression, anxiety, phobia, addiction, they also go through constant lethargy, weakness in the body, loss of interest, diminished ability to work. So, mental health is not just the absence of mental illness. It is also emotional well-being. Emotionally, you are stable, you are productive, you are performing to the best, you are effectively coping with the life challenges, and you are communicating freely and rationally. तो मानसिक रोग का होना, मानसिक स्वास्थ्य का होना, मानसिक रोग का अभाव नहीं है, बल्कि जिंदगी की मुश्किलों का सामना करना, अपनी भावनाओं, अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना और हर हाल में सशक्त और सक्षम रहना, ये मानसिक स्वास्थ्य है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हम सब कभी न कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में मानसिक मुश्किलों से के शिकार हुए हैं। There is endless challenges in this life. I cannot even think of a life without challenges. And I always say that you will have stress till the day you die. But sometimes we get under the weather and sometimes we fight and we rise again. लेकिन इस वक्त हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, COVID-19, द पैंडेमिक, ये कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि इस COVID-19 ने न सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को तोड़ा है, बल्कि मानसिक जगत में भी इंसान को तोड़ के रख दिया है। The COVID-19, this pandemic has crippled the mental health world.
And the major after effects of this pandemic are severe health problems around the world, drastic falls and dropouts in economic and financial world, constant witnesses to deaths in and out of the houses, unavoidable cuts in the job world, restraining academic life to the virtual learning, close down of all the schools and universities, social isolation, interpersonal intolerance, addictions, name it, alcoholism, smoking, drugs, and to top it all, WhatsApp, online games. All these problems in turn has intensified the strong sense of insecurity, strong sense of uncertainty, कल क्या होगा, unmanageable worrying, एक लगातार चिंता में रहना, frustration, unavoidable sadness, एक बिल्कुल एक हमेशा के लिए एक sadness सी छा गई है, hopelessness, helplessness, हम इससे बाहर निकल पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये कब तक चलेगा, insecurities and fear of unknown, कल क्या होगा कोई नहीं कह सकता। पहले ये सुना जाता था 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट फेज, सेकेंड वेव, थर्ड वेव चलता ही जा रहा है। मेरी अपनी ही लिखी हुई एक कविता जो मैंने अवसाद के ऊपर लिखी थी इसी कोविड पीरियड में, उसकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ कहना चाहूँगी कि धीरे धीरे चुपके से बैठ जाता है अंदर, धीरे धीरे चुपके से बैठ जाता है अंदर, दिल के कोने से फैलता है तो फैलता चला जाता है अंदर। ये कैसी खला है, ये कैसा अंधेरा है, बादलों में छुपा ये कौन सा आसमां है, मैं कौन हूँ क्या हूँ, कई सवालों में उलझूं, मैं कौन हूँ क्या हूँ, कई सवालों में उलझूं, खुद अपना अक्स आईने में लगता अनजान है। कह दिया हकीम नफ्सियाती ने कि अवसाद है ये, डिप्रेशन है ये, कह दिया हकीम नफ्सियाती ने कि अवसाद है ये, पूछा जो इंसान से तो कहा अजाब है ये। And we still want to live with it. We still hesitate in reaching out for help. क्यों हम तनाव में रहते हैं, क्यों सहते जाते हैं, क्यों सोचते हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, अपना दर्द दबाते रहते हैं और जब तक कि वो दर्द आदत ना बन जाए। Why can't we just break this stigma कि लोग क्या कहेंगे, इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, मैं कैसे ये प्रॉब्लम में आ सकती हूँ, मुझे कैसे डिप्रेशन हो सकता है, मुझे क्यों फिक्र हो सकती है, मुझे क्यों किसी बात का डर लगता है, ये क्यों सारे दिन इन्हीं सवालों में क्यों गिरे रहते, क्या हम इंसान नहीं हैं। एक केस हिस्ट्री सुनाना चाहूँगी यहाँ पे। मैं 30 साल से उदयपुर में नहीं थी, मैं कुवैत में रहती थी और वहाँ प्रैक्टिस करती थी। अभी गए 3 साल से मैं उदयपुर आई हूँ और रोज़ जितने केसेस देखती हूँ उन सब केसेस में एक सोशल स्टिग्मा तो जैसे एक मेन पॉइंट हो गया है। आज एक केस यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। एक बहुत बड़े ऑफिसर, बहुत ऊंची पोस्ट पे हैं वो, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा मैडम मेरे साथ घर चलिए। मैं कभी किसी के घर नहीं जाती, ये समहाउ मेरी एथिक्स के खिलाफ है। उनके बहुत कहने पे, बहुत रिक्वेस्ट करने पे मैं उनके साथ उनके घर चली गई। क्या देखती हूँ, 35 साल से उनकी वाइफ एक कमरे में बंद है। 35 साल से वो डिप्रेशन का शिकार है। न सिर्फ डिप्रेशन, मेरे हिसाब से तो वो मैनिक डिप्रेसिव है, क्योंकि बहुत सारे उसके सिम्टम्स मैनिया के भी हैं, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ। साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं लेके गए, ये सोच के क्योंकि
उदयपुर का साइकियाट्रिस्ट उनको बहुत अच्छी तरह से जानता है, तो कैसे बताऊं कि मेरी बीवी को ये प्रॉब्लम है। और 35 साल से घर के नीचे वही कमरे में रहती हैं, जाके डॉक्टर से मिलते हैं, किसी और के नाम से दवाई लेके आ जाते हैं और वाइफ को दे देते हैं। उस कमरे के बाहर एक पलंग है, वहाँ वो हस्बैंड रात को सोते हैं। मुझे क्यों लाया गया, आज इतने साल बाद मुझे क्यों बुलाया गया? तो उनका ये कहना था कि मेरी माँ की ज़िद पे मैंने बुलाया। तो मैं उनकी मदर से जाके मिली, जो अराउंड 78 ईयर्स ओल्ड थी। बहुत देख के बड़ी तकलीफ़ हुई कि कोई इलाज नहीं कर रहे हैं, कोई दवाई नहीं दे रहे हैं, उसको घर से बाहर नहीं ले जा रहे हैं। तो मैंने उनकी मदर से पूछा कि आपने क्यों बुलाया मुझे आज यहाँ पे? बोले इसलिए बुलाया बेटा कि इसकी बेटी बड़ी हो गई है, मुझे उसकी शादी करनी है। तो क्या बोलूँ लोगों को कि माँ कहाँ है? वेरी सैड, बहुत तकलीफ़ की बात है। और बेटी छोड़ के इसलिए चली गई कि वो पापा को ये नहीं समझा सकी कि मम्मी का इलाज कराओ। बेटी का ये कहना है कि मैं पूरी फैमिली के साथ लड़ के थक चुकी हूँ, सबको समाज की पड़ी है, सबको लोगों की पड़ी है, मेरी मदर की नहीं पड़ी। और अब ये है कि मदर भी बाहर नहीं जाना चाहती, दिनों दिन खाना नहीं खाती, नहाती नहीं है, कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, एक ही अखबार को 10 बार 12 बार पढ़ेगी, टुकड़े काट काट के अखबार के रखेगी। मैं गई, मिली मुझसे, बहुत थोड़ी बात की, लेकिन ऑफ कोर्स शी वाज नॉट ओरिएंटेड और उनको ये लगा मैं कौन आ गई, थोड़ी एग्रेसिव भी हो गई थी। मैंने रिक्वेस्ट किया आप इनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दें, कम से कम ड्रिप से इनको थोड़ा बहुत खाना मिलेगा, अगर ये खाना नहीं खाती तो। नहीं नहीं मैडम, आप हॉस्पिटल की बात मत कीजिए, आप अगर इस घर में कुछ इलाज कर सकती तो कर ले। वो उस हद तक पहुंच गई थी कि काउंसलिंग वहाँ असर नहीं करती, जब तक उसको दवाई नहीं मिलती तो काउंसलिंग असर नहीं करती। तो ये तो एक केस है, इतने केसेस हैं। अगर बच्चों की प्रॉब्लम है तो बाहर नहीं आएंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, क्योंकि हम कैसे कहें, हम पागल थोड़ी हैं। हम लोगों को क्या बताएं हमारे घर में रिटार्डेड चाइल्ड है या ऑटिस्टिक चाइल्ड है। A very interesting quote I read today. Mental health is like an abused child, neglected, ignored, deserted, marginalized, crying for attention and care, but cannot help. सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली का इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि इस बच्चे को हेल्प चाहिए या इस इंसान को हेल्प चाहिए। हमें थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, हाथ पाँव में दर्द हो जाए, कमर में दर्द हो जाए, खाली एक मस्कुलर पेन होता है, हम डॉक्टर्स के पास भागते हैं कि हमें दवाई मिल जाए। तो फिर मेंटल हेल्थ के लिए अगर एक इंसान इतना तनाव में जी रहा है, इतने साल से दुखी है, सोता नहीं है, खाता नहीं है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, नहाता नहीं है, सही बात नहीं करता है, कोई उसकी बात में लॉजिक नहीं होती है, हमेशा दुखी रहता है, तो उसके लिए डॉक्टर की हेल्प क्यों नहीं चाहिए? ड्रग्स लेता है, अल्कोहल लेता है, गुस्सा करता है, मारता है, वायलेंट होता है, एग्रेसिव हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में दिनों दिन झगड़े चलते रहते हैं, निभा नहीं पा रहे, डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है, लेकिन हम किसी प्रोफेशनल से हेल्प नहीं लेंगे, इसलिए कि हम कैसे बता सकते हैं कि हमारी फैमिली में ये प्रॉब्लम है। प्लीज़ अंडरस्टैंड योर मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर फिजिकल हेल्थ। आप एग्री करते हैं ना कि देयर इज़ अ माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। तो अगर आपकी माइंड, अगर आपका मेंटल माइंड सही तरीके से वर्क नहीं करता, वाई डजंट इट मैटर? द प्रॉब्लम्स ऑफ माइंड, वाई दे डोंट मैटर? और अगर वो सही नहीं है तो आप फिजिकली कैसे स्टेबल हैं, कैसे हेल्दी हैं? दिस लॉकडाउन, एनफोर्स्ड आइसोलेशन, स्ट्रेसफुल कंडीशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, स्कूल और यूनिवर्सिटी का बंद हो जाना, घर में अकेले रह रहे के लोनली होना, लोनलीनेस का बढ़ जाना, unacceptable and strange behaviors of adolescents, of children in the house, interpersonal intolerance, aggression, and the worst thing is that कि
All these things are happening in the age group of 19 to 35 or 9 to 50. And what are we doing? Let's talk about certain facts and figures given by WHO. 2014 में WHO ने ये अनाउंस किया था, ये प्रेडिक्ट किया था कि 2020 तक इंडिया में 20% पॉपुलेशन डिप्रेशन का शिकार होगी. 20% पॉपुलेशन और 1/3 ऑफ सुसाइड, 1/3 ऑफ मतलब जितनी आत्महत्याएं दुनिया में होती है, 1/3 of the suicide will take place in India, and India will be declared as youth suicidal country. ये 2014 में अनाउंस हुआ था. One of the five persons will suffer from mental illness. 50% of the corporate staff will suffer from chronic stress, 30% from the addiction, and 20% from the marital court or leading to divorce. आज इस कोविड के बाद, इस पैंडेमिक इरा में, these percentages have gone 5 times more. 5 times more. I was just reading a study today and I found out that 1 out of 20 people in India is depressed, is suffering from depression. Needless to talk about the impulse control problems, the addiction, the suicide, the rape. Every day you pick up the newspaper, the first one of the page, the first news is about a rape. And who is doing? From 15 to 35 years of age. मेरा सवाल हमेशा उन लोगों से होता है कि आज अब मत बोलो क्या हो रहा है. रेप तो हो चुका है, जिस इंसान ने किया वो कर चुका है. किसी साइकोलॉजिस्ट ने मुझसे पूछा कि शुड दीज रेप विक्टिम्स गो फॉर साइकोथेरेपी? डू यू थिंक they will change? They have crossed that limit. They have gone beyond that. They are psychopaths now. They are criminals. They should be punished. साइकोथेरेपी कब मिलनी चाहिए थी? जब वो यंग थे, जब वो एग्रेसिव थे, जब वो डिफाइंड बन रहे थे, रूल्स के अगेंस्ट जा रहे थे, कंडक्ट डिसऑर्डर्स बन रहे थे, एंटी सोशल पर्सनालिटी बन रहे थे. तब ध्यान देना चाहिए था. तब पेरेंट्स को सोचना चाहिए था कि हमारे बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है. उस वक्त इग्नोर किया गया. लड़के ऐसे ही होते हैं, अरे सब लड़के मस्ती करते रहते हैं, ध्यान नहीं दिया. So proper intervention, timely intervention is very important. Okay, we move forward, and the worst affected age group is in the world now is around 10 to 19 years old. और यही साल होते हैं, यही पीरियड होता है जब पर्सनालिटी फॉर्मेशन होता है, जब बच्चे का इमोशनल, सोशल और मेंटल डेवलपमेंट होता है. क्रिटिकल थिंकिंग है, मेकिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, हेल्दी लाइफ स्किल्स हैं, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेल्फ केयर, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन. ये सब चीज़ें इस एज ग्रुप में डेवलप होती है. उस वक्त वो इग्नोर किए जाते हैं. इवन द डेटाज, द वर्ल्ड डेटा शोज नाउ कि 1/6 of the mental illness, 1/6 of the mental illness are from this age group. And unfortunately, 50% of the mental problems are diagnosed at the age of 14. At the age of 14, but they go unreported and untreated. माँ बाप ध्यान नहीं देते. Inactive parenting, authoritarian parenting, doormat parenting, and the results, the children are facing so many mental health problems. Depression is one of the leading cause of death, and which stops and affecting all. Okay, and at present, as I said, 1 out of 20 people is going through depression. Suicide is the 3rd cause of death. Recently, a girl, 22-year-old girl, brilliant,
brilliant. She was gold medalist, very pretty, jumped from a building and died. What's the reason? No one knows. Asked the mother and father and they said, she just left a note, I'm sorry, and that's it. तो कोई इंटरवेंशन ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं कहाँ क्या हो रहा है. Nobody talks about these issues. Nobody express openly. आप में से कितने लोग यहाँ बैठे, कब कौन डॉक्टर के पास जाके कहता है मैं बहुत सैड रहता हूँ, ये मुझे बहुत डर लगता है, ये मुझे बहुत चिंता होती है. हम जाते, आजकल सर दर्द बहुत रहता है, आजकल भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती. हम फिजिकल प्रॉब्लम, फिजिकल कंप्लेंट के लिए जाएंगे, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम के लिए नहीं जाएंगे. यही नहीं कहेंगे कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ मुश्किल आ गई, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, वो नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ हमें ऐसा लगता है कि मैं पागल थोड़ी हूँ. जनरली मैं यहाँ सुनती हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं क्यों डॉक्टर के पास जाऊँ. साइकेट्रिक हॉस्पिटल में कौन जाता है. और नहीं तो आप मेडिसिन लिख के दे दो, कहना नहीं चाहेंगे, बात नहीं करेंगे, काउंसलिंग नहीं, आप मुझे दवाई लिख के दे दो. सबको ये चाहिए दवाई दो, दवाई लेके घर जाएंगे, लेकिन हम बात करेंगे नहीं, हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नहीं, हम अपना परसेप्शन, दूसरों का परसेप्शन देखेंगे भी नहीं कि लोग हमारी प्रॉब्लम के बारे में क्या. एंड गो एंड सीक प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट टॉक टू द पीपल. It is quite interesting that we prefer to attribute physical problems to internal and treatable causes, but mental problems to external and untreatable causes. And that's why we become so passive towards the mental health. Now, talking about the mental services, yes, I do agree that in India the services are quite limited, they're poor. I was just going through the Google and I checked, there are only around 4,000 psychiatrists and 900 psychologists. But we are not saying that there is a zero. No, there are psychiatrists, there are psychologists. Approach. Please talk to them, take your mental health. See, first responsibility lies with you. आप खुद को चेक कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट. Reflect on yourself. Is something wrong with me? Am I feeling sad? Am I worried? Why am I not sleeping? क्यों भूख क्यों नहीं लग रही है मुझे? क्या हो रहा है मुझे? किसी बात से डर लग रहा है क्या? चिंता हो रही है क्या? अगर वो आप खुद डील कर सकते तो वेरी गुड, लेकिन आपको लगता है कांस्टेंट एक आदत सी बन गई है और उससे आप निजात नहीं पा रहे, उससे आप छुटकारा नहीं पा रहे, then go and talk to some professional. Then is there any way I can do something? Can I look at my problems in a different way? Can I perceive it differently? Can I interpret? Okay, so I just wanted, as I said, that inactive and authoritarian parenting, unhealthy peer influence at a wrong age. I'm talking about 9 to 10. Okay. Social economic problems, social stigma, physical traumas, and poor mental health services. I'm talking about this adolescents. Now come to the smaller group, from age 1 to 9. आज सुबह मेरे पास 2 बच्चे आए थे, twins, beautiful children. 40 minutes में मैं उनको 60 seconds से ज़्यादा नहीं बिठा पाई. They were so hyper, jumping up and down, running on my sofas, doing all kind of aerobics on the carpet. लेकिन बहुत मुश्किल से भी मैं उनको 60 seconds भी नहीं बिठा पाया. And I asked the mother, how do you deal with these children? कि मैडम ये इतनी ही मस्ती करते हैं, इतने शैतान हैं, नहीं समझते, बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ. शैतान, they are clear cut patients of ADHD. I wouldn't say patient, but they are clear cut ADHD, hyperactive बच्चे हैं. इसलिए लाए थे कि जो बोलते हैं समझ में नहीं आता, बहुत फास्ट बोलते हैं. Lack of awareness, lack of education, lack of information about these problems. Autism, speech problems,
मेंटल रिटार्डेशन, ये बच्चा बेवकूफ़ है, ये मंद बुद्धि है, ये बच्चा मेरा थोड़ा सा कमज़ोर है, एंड टेकन फॉर ग्रांटेड, बाहर नहीं निकालते बच्चों को. These are early developmental problems. Please, there are assessments. Take them for assessments. उनको असेस कराइए, फिर उनके हिसाब से, उनकी इंटेलिजेंस के हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट कराइए. These children, they do have some remedial programs. Take them for that. Stop just ignoring them, leaving them alone. बच्चे स्कूल नहीं जाते, ये साहब ये तो बहुत वीक है, कमज़ोर है, इसको मैं क्या करूँगा स्कूल भेज के. एग्रेसिव बन जाते हैं वो बच्चे घर में रह रह के. आई स्टिल रिमेंबर अ मदर ब्रॉट अ बॉय टू मी एंड ही वॉज बाइटिंग द मदर ऑल अराउंड. क्यों? कि ये इतना ही एग्रेसिव है, हम नहीं संभाल पाते. उस बच्चे को पूरे दिन में 1 घंटा भी नहीं, मतलब राधा आधा घंटा भी नहीं अपनी एज ग्रुप के साथ खेलने मिलता है. उसको बाहर ही नहीं निकालते, क्योंकि नहीं लोग क्या कहेंगे कि ये तो ये चेहरे से ऐसा क्यों लग रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम है. एजुकेट नहीं करते अपने आप को, बात नहीं करते किसी से, डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे. फिर अगेन वही वर्ड आ गया, लोग क्या कहेंगे. मैं ये नहीं कहती कि थ्रू आउट इंडिया ये बात है. आई थिंक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, वहाँ फिर भी इस बात की अवेयरनेस है. लेकिन छोटी जगह जहाँ पे मैं उदयपुर या उदयपुर के अतराफ़ में जहाँ मैं अभी काम कर रही हूँ, जहाँ मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो रहा है, वहाँ पे ऐसा लगता है कि देयर इज़ ह्यूज नीड टू एजुकेट दिस पीपल, ह्यूज नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ह्यूज नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड that there is a solution, there is a treatment for these problems. मानसिक रोग होना कोई अजाब नहीं है, कोई गुनाह नहीं है. जैसा आपका फिजिकल रोग होता है वैसा ही आपका मानसिक रोग होता है. फिजिकल इलनेस हो, मानसिक इलनेस हो, कभी हम फिजिकल इलनेस को अजाब मानते हैं क्या? उसको छुपाते हैं. हम जाते हैं डॉक्टर के पास, भागते हैं कि इसका इलाज चाहिए. तो मानसिक रोग को क्यों छुपाई जाती है? Why do you want to hide your mental illnesses? Go and get the treatment. Unfortunately, there are so many misconceptions about mental health. बहुत सारी धारणाएं जो गलत हैं. सबसे पहले तो मैं पागल नहीं हूँ. मैं जो मानसिक रोगी है वो तो पागल है, वो तो क्रेजी है. तो मैं किसी को कैसे बता सकती हूँ कि मेरा बच्चा पागल है, या मेरा आदमी पागल है, या हम दोनों के आपस में बंधन, या मेरा आदमी अल्कोहल बहुत पीता है या ड्रग्स बहुत लेता है, या हम दोनों में झगड़े होते हैं, मैं कैसे डाइवोर्स ले सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे डाइवोर्स ले सकती हूँ? नो वे. सो डोंट वांट टू टॉक अबाउट. दोषपूर्ण है, डिफेक्टिव है. अगर मानसिक रोग है तो वो डिफेक्टिव है. कैसे डिफेक्टिव है? उसके पास मत बैठो, नहीं तो तुम भी वैसे ही हो जाओगे, तुम भी उसके जैसे पागल हो जाओगे. एज इफ इट इज कंटैमिनेटिंग. नो. मंद बुद्धि है, रिटार्डेड है, ये तो बिल्कुल क्या बोलते हैं लोग, मतलब कमजोर है, इसके पास मत जाओ. वी लिटरली सेक्लूड देम. उनको अलग करते हैं. क्यों? अगर किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है तो क्या हम उनको अलग करते हैं? वी एम्ब्रेस देम, वी टेक देम फॉर द ट्रीटमेंट, वी सपोर्ट देम. सिमिलरली अगर किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एडिक्शन है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, मैनिक डिप्रेसिव है, कोई भी है, एम्ब्रेस देम एंड सपोर्ट देम. टेक देम टू द राइट पीपल, गेट देम द राइट ट्रीटमेंट. अगर आपके घर में, आपकी फैमिली में या अतराफ में आपको कोई नज़र आता है तो उनको सजेस्ट कीजिए कि अपना इलाज कराओ. इलाज है जो फिजिकल हेल्थ के लिए भी हम यही बोलते इलाज कराओ, तो मेंटल हेल्थ के लिए भी इलाज कराओ. हम यही नहीं कह रहे, लेकिन नहीं, उनको हम बिल्कुल सोसाइटी से अलग, फैमिली में अलग, अलग कमरे में बंद रखना, इनके साथ नहीं बैठना, दूसरे बच्चों को उनके साथ नहीं बिठाना. प्लीज डोंट डू दैट. The biggest, as I said, talking about your mental health issues is your strength. It should not be your weakness. Accept it. This is my problem. I'm depressed. I'm angry.
I get angry, I get frustrated. How should I deal with it? Accepting, then dealing with it, overpowering, and empower yourself in your problems. Make it as your strength, not as your weakness. अपनी परेशानियों का सही हल ढूंढिए, सही डॉक्टर के पास जाइए और यही समझदारी है, उसको छुपाने से बनिस्बत उसका इलाज करवाइए. एक ही मैं हर बार अपने पेशेंट्स को एक कहती हूँ, अंधेरे में रहना चाहते हो या एक कैंडल जलाना चाहते हो? क्या चाहते हो? बोले कैंडल जलाना. तो कैंडल जलाइए. लाइट अ कैंडल instead of staying in the darkness. It's your health. It's your life. Take the charge of it. Fight your fears. Overcome your blocks and empower yourself. Today, on this day of mental health, 2020, let's pledge one thing, that we fight against all these problems, that we take care of ourselves, that we invest rightly in our mental health as much as we invest in our physical health. We take our health, I'm talking about, which is mental, physical, social, emotional, all kind of health, very seriously, and enjoy a complete holistic well-being. We pledge that if we see people around us who are suffering from mental health problems and who lack information and education about it, we educate them. We reach out to them and make them understand it's not a crime. You are not cursed. It's just a problem. It's just an issue which can be resolved. बहुत हद तक हमारे यहाँ मेंटल प्रॉब्लम को कर्स माना जाता है. मैंने ये भी देखा, बहुत से लोग रिलीजियस पंडित है, गुरु है, मौलवी है, सबके पास ले जाते हैं और बहुत तरह के दे यूज़ लॉट ऑफ वेज. I cannot comment on that, but proper intervention is very important. We work in such a manner that we prevent इस कोविड के ख़त्म होने तक, see the after effects on the mental health. They are going to bloom, they are literally going to increase in many folds. You cannot even imagine. Just think, take an example, once the children start going to school, do you think it will be easy for them to go from their comfort zone to the school? The basic social skills what they have, they can develop in a school. They haven't got chance to develop that. I'm talking about the new children. There'll be a lot of separation anxiety. And the older ones, think about them, that they have been so used to their comfort zone in the room, sitting on the computer, doing whatever they can do. Exam diya nahi diya. I've seen many students cheating now during exams. Online exam दे रहे हैं, पास में कॉपी पड़ी हुई है. क्यों कर रहे हो? अरे ठीक है ना. That's the way they take it. So they are losing out on the basic skills. They are losing out on the basic coping strategies of fighting back. So it's going to be very difficult. And people have lost so much they have lost in this COVID period. It will take years and years to get back to the normal, and we don't know when. ये uncertainty सबको खाई जा रही. So I end my presentation with this. Please take your mental health, make it very important as your physical health, and there is no health without mental health. Your health is incomplete without your mental health. Instead of living in agony, deal with yourself,
Take charge of your mental well-being and be happy and positive in your life. Thank you so much. If anyone has a question, they can ask me. I cannot see any question. Okay, in that case, I'm just putting off. Thank you for listening, and I hope to have some good results after this presentation. Thank you so much.